میرے پاکستانیوں آج انٹرنیشنل لیول پہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور میں آپ کو ایک کلپ ابھی سناتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو کچھ دکھانا ہے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کیا ہوا ہے. Sure. Well, I have a statement to read for all of you with respect to the Israeli strike in Doha, and here it is. This morning, the Trump administration was notified by the United States military that as Israel was attacking Hamas, which very unfortunately was located in a section of Doha, the capital of Qatar. Unilaterally bombing inside Qatar, a sovereign nation and close ally of the United States that is working very hard and bravely taking risks with us to broker peace, does not advance Israel or America's goals. However, eliminating Hamas, who have profited off the misery of those living in Gaza, is a worthy goal. President Trump immediately directed Special Envoy Witkoff to inform the Qataris of the impending attack, which he did. The president views Qatar as a strong ally and friend of the United States and feels very badly about the location of this attack. President Trump wants all of the hostages in Gaza and the bodies of the dead released, and this war to end now. President Trump also spoke to Prime Minister Netanyahu after the attack. The Prime Minister told President Trump that he wants to make peace, and quickly. President Trump believes this unfortunate incident could serve as an opportunity for peace. The President also spoke to the Emir and Prime Minister of Qatar and thanked them for their support and friendship to our country. He assured them that such a thing will not happen again on their soil. ہاں جی، تو دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو قطر کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا ہے اس کے بارے میں امریکہ کو پہلے سے پتا تھا اور امریکہ نے یعنی ٹرمپ نے اپنے بندے کو کہا کہ قطر کو بھی انفارم کر دو اور قطر کو بھی انفارم کر دیا گیا تھا. یہ آیا ہے امریکہ کا ورژن، یہ ہے آفیشیل وائٹ ہاؤس کا ورژن. لیکن کھیل میں ایک ٹویسٹ تب آتا ہے جب قطر کی فارن منسٹری کے آفیشیل اسپوکس پرسن یہ بیان جاری کرتے ہیں. The statement being circulated about Qatar being informed of the attack in advance are baseless. The call from a US official came during the sound of explosions caused by the Israeli attack in Doha. اٹیک شروع ہو چکا تھا، دھماکے ہو رہے تھے تو امریکہ کی کال آئی. اس سے پہلے امریکہ کی کوئی کال ہمیں نہیں آئی. یہاں پہ بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں. امریکہ یہ دعویٰ کیوں کرے گا کہ ہم نے قطر کو پہلے انفارم کر دیا تھا؟ لیکن اگر امریکہ کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے تو قطر کا دفاعی نظام کہاں ہے؟ قطر کے رافیل جہاز کہاں ہیں؟ F-15s کہاں ہیں؟ قطر کوئی غریب ملک نہیں ہے، بڑی زبردست ایئر فورس رکھتا ہے قطر. نمبرز کو چھوڑیں لیکن ان کے پاس بڑے ایڈوانس جیٹس موجود ہیں. تو وہ کہاں تھے؟ کیونکہ جو نقشہ جاری کیا گیا ہے اسرائیلیوں کی طرف سے، پاسبل کون کون سے رستے تھے اسرائیل کے پاس یہ حملہ کرنے کے، پہلے ان کا جائزہ لیتے ہیں. یہ 3 راؤٹس بنتے ہیں جن سے اسرائیل قطر پہ حملہ کر سکتا تھا. ان میں سے 2 رستے تو سیدھے سیدھے وہی ہیں کہ سعودی عرب سے گزر کے ہی آنا پڑتا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں رستے یا بلکہ یہ 4 رستے جو ہیں یہ ایسے بنتے ہیں کہ مسلمان ممالک کو ظاہر ہے کہ اسرائیل کی مدد کرنی پڑے گی اور پھر اصل سامنے آ جاتا ہے. ماشاءاللہ مسلمان ممالک اتنے تگڑے ہیں کہ اسرائیل کو کوئی سائڈ پہ نہیں جانا پڑا. یہ جو سیدھی لائن درمیان میں نظر آ رہی ہے نا، تو یہ ہے جی ان کا روٹ جو انہوں نے یوز کیا ہے. اور اب تک یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جی یہ والا روٹ یوز کیا گیا، یعنی سعودی عرب کے اوپر سے گزر کے قطر پہ حملہ کیا گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب ایران کے میزائل تو انٹرسیپٹ کر لیتا ہے. تو سعودی عرب ایران کے میزائل تو انٹرسیپٹ کر لیتا ہے لیکن اسرائیل کے جہازوں کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکا. ایک اور بات سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کے جہازوں نے مڈ ایئر ریفیولنگ کی ہے اور امریکی جہازوں نے اس کی ریفیولنگ کی ہے، اور یہ بھی ہمارے سو کالڈ مسلمان ملک کے اوپر ہوا ہے اس کی ایئر سپیس میں. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ امہ کا اس ٹائم کیا حال ہے. اور پاکستانی جرنیل یہ بھانپ گئے ہیں کہ اسرائیل از انیویٹیبل. وہ یہ بھانپ گئے ہیں کہ ہم نے اب جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے تو ہم چلیں گے ورنہ ہماری بدماشیاں ختم ہو جائیں گی، اور اسی لیے یہ اس طرف بھاگ جا رہے ہیں. یہ رستہ انہوں نے چن لیا ہے. تو ابھی تک کی صورتحال تو یہ ہے کہ قطر کے فیس پہ ایک ایگ پڑا ہوا ہے، کیونکہ ایران کی ایئر سپیس وائلیٹ کی تھی نا اسرائیل نے، تو ایران نے بڑا تگڑا جواب دیا تھا اسرائیل کو.
अब कतर की एयर स्पेस वायलेट हुई है, कतर के ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं है, कतर को तेल गैस बेचने की पाबंदी नहीं है, कतर के पास माल की भी कमी नहीं है, हथियारों की भी कमी नहीं है। इसके बावजूद कतर की तरफ से कोई जवाब दिए जाने की कोई ना इतला है, ना खबर है, ना उनका इरादा है, बल्कि ट्रंप ने उल्टा कह दिया है कि यहां से हमें अमन हासिल करने का मौका मिलेगा। तो फिलहाल तो मैं इतना ही कहूंगा कि इन तिलों में तेल नहीं है। अरब ममालिक मुकम्मल तौर पे लेट चुके हैं, अब इब्राहिमी मुआहदा होना ही होना है और इसराइल अपनी टांग ऊपर रख के मनवाएगा। ये अगर मानना ही था तो 30 साल पहले मान लेते, कम से कम कुछ बातें इसराइल से मनवा लेते। कोई खित्ता ज़मीन उसे कहते कि छोड़ दो और इतना रहने दो फ़लस्तीनियों के पास। अब जबकि उसने हर चीज़ मलिया मेट कर दी, अब जाके मान भी लेंगे। पर एक और डेवलपमेंट हुई है, ईरान ने IAEA के साथ जो उनका पूरा प्लान है कि कैसे हमने मिल के चलना है, उस मुआहदे पर या जो भी एक फ्रेमवर्क है उस पर दस्तखत कर दिए हैं। ये एक आगाज़ है उस इमिनेंट जंग को रोकने की कोशिश का, जो ईरान तो करेगा ज़ाहिर है, वरना इसराइल और अमेरिका तो तुले बैठे हैं कि ईरान को मलिया मेट करना है। लेकिन ईरान IAEA के साथ, इवन दो ये साबित हो चुका है कि IAEA के लोग जो थे इंस्पेक्टर्स, वो इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, इसके बावजूद एक फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है जो इंटरनेशनल लेवल पे अभी हो रही है। अब आते हैं, थोड़ा सा लोकल टच भी दे लें। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि अलीमा खान क्या कह रही हैं पुलिस वालों को, ताकि आपको समझ आए कि सिचुएशन क्या है। फिर आते हैं कि फौज कितनी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है, काश उन्हें बताने वाला कोई हो। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे इंशाल्लाह। पिछली दफा गई भी थी, तो इसलिए मुझे बड़ा दुख हुआ था उस दिन कि देखो ये अंडे मरवा के, उस दिन कोई पुलिस नहीं खड़ी होती, उस दिन पुलिस भी आगे इतनी जमा थी, तैयारी थी सबकी अंडे के लिए। देखो बेटा, अंडे कर लो, गोलियां कर लो, एंड में घर जाके आप ही लोगों को शर्म आएगी कि हम ये क्या कर रहे थे। सिर्फ इमरान खान की आवाज ना बाहर पहुंचे, ये ड्यूटी है कि इमरान खान की आवाज ना पहुंचे। हम इमरान खान की आवाज 2 हफ्ते से डिस्टर्ब की भी है ना, 2 दफा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको इमरान खान का पता है कि क्या कहते हैं, पैगाम पहुंच जाएगा। सोशल मीडिया के आपने फोन ले लिया, कोई बात नहीं, हम अलीमा खान साहब बता रही हैं कि देखो ना करो ऐसे, समझाने की कोशिश कर रही हैं कि तुम्हारी फैमिली क्या कहेगी, तुम किस लिए ये सारे काम कर रही है। पुलिस वाले की किस किस्म की हरकतें हैं कि जी अंडे फेंकवाए जा रहे हैं, पुलिस की निगरानी में सब कुछ हो रहा है। आपको पता है ना कि आज जो रिपोर्टर्स वहां मौजूद थे, उनमें कई रिपोर्टर्स के पुलिस ने फ़ोन छीने और लेकर चले गए, अभी तक वापस नहीं किए। जो लास्ट इतलात आई हैं, लोगों को मारा जा रहा है, धक्के दिए जा रहे हैं साफ़ियों को। लेकिन एक बंदा तैयब बलोच जो कंपनी की तरफ से वहां मुबैना तौर पे गया था, वो एक साफ़ी है, बाकी कोई साफ़ी नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहले इमरान खान का एक छोटा सा पैगाम, क्योंकि वो 3 हिस्सों में आना है, तो अभी तक एक और दूसरा हिस्सा छोटा छोटा करके जारी किया गया है, तो मैं वो पढ़ने की कोशिश करता हूँ। पहले से मैं इमरान खान ने जो बात की, मैं थोड़ी सी बताऊँगा आपको। एक ही पैरा, दुनिया में निज़ाम हुकूमत की बुनियाद अखलाकियात पर होती है, जबकि पाकिस्तान का अखलाकी निज़ाम हर सतह पर तबाह कर दिया गया है। जमहूरियत का हुस्न भी अखलाकियात है, लेकिन आसिम लॉ के तहत मौजूदा निज़ाम में अखलाकियात की पस्ती के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। कुरान पाक में बारहा अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का हुक्म दिया गया है। इस हुक्म की पैरवी करते हुए पूरी कौम का फर्ज बनता है कि हक के साथ और बातिल के खिलाफ डट जाएं। मौजूदा निज़ाम जुल्म और इखलाकी गिरावट की जिस जगह पर चल निकला है, इसका खात्मा यकीनन इसी निज़ाम की तबाही पारी होगा। कौम को पैगाम देना चाहता हूँ, घबराना नहीं है, फतह आपकी होगी। ये इतना ही मैं पढ़ूंगा, दूसरा हिस्सा थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा, फिर चलते हैं इस पर बात करते हैं कि इमरान खान जो कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं। इमरान खान के पैगाम का दूसरा हिस्सा है कि तमाम मजहबी तालीमात, माशरती इक़दार और इखलाकी ज़ाब्तों के बरखिलाफ जिस तरह मेरी अहलिया पर जुल्म किया जा रहा है, वो इंतहाई शर्मनाक है। इन पर यह जबर सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि मुझे तोड़ा जा सके, लेकिन मैं बुशरा बेगम को ख़ुसूसी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि तमाम तर मसाइब और सऊतें भी इनके अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकीं, और वो मेरे साथ खड़ी हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस कदर वफाशियार खातून की मिसाल नहीं मिलती, जो ऐसे जुल्म और जबर के बावजूद डट कर खड़ी हैं। अब इस पैगाम से इमरान खान ने सबको मिट्टी में मिला दिया है। किस किस को भला, देखिए ना, बिटवीन द लाइन्स पढ़ना होता है। पैगाम किसके जरिए आता है? बहनों के जरिए या पहुंच जाता है, ठीक है। अब जितना मर्जी ये रोकने की कोशिश करें, पैगाम आ जाता है, ठीक है। अब बहनों से मुलाकात भी हो जाए और फिर एक पैगाम ये भी आ जाए कि मेरी बीवी भी बड़ी वफाशियार है, तो जो लड़ाइयाँ डलवाना चाह रहे हैं, ग्रुपिंग करवाना चाह रहे हैं, उनकी तो माँ मर गई ना।
समझें इमरान खान किस तरह एक पैगाम से एक तीर से कई शिकार कर लेते हैं बताने के लिए कि कोई मुझे इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता कि मेरी इधर बहनें हैं तो उधर बीवी है तो कोई लड़ाई है आपस में, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्रेक डाउन करके कि इमरान खान ये जो कह रहे हैं कि ये निज़ाम अपने बोझ से गिरेगा और अवाम को कह रहे हैं कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर पे चलो और तुम भी खड़े हो जाओ, कि दुनिया में हर तरफ इनकलाब आ रहे हैं। नेपाल के हालात देखें, वज़ीर आज़म की बीवी को बताया जा रहा है कि जला दिया गया है, उनके वज़ीर ख़जाना को सड़कों पर नंगा घसीटा जा रहा है। ये फ़ौज के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। उसकी वजह आप नेपाली लोगों के अगर सोशल मीडिया को चेक करें या वहाँ के लोगों की बातचीत सुने तो आपको पता चलेगा कि लोग ये कह रहे हैं कि हम इस निज़ाम से तंग हैं जिसमें अशराफिया अमीर से अमीर तर और गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। इनके लेविश लाइफ स्टाइल से हम तंग हैं। थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान पीक पर है इन सारी चीज़ों की, और जितना इस टाइम डिससेटिस्फैक्शन इस निज़ाम के